हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। कल हमने किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। आज करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी स्टडीड यस्टरडे। करेक्ट। बिफोर वी कम टू एक्चुअल क्लासिफिकेशन, मैं जस्ट एक बार तुम्हें रिकैपिचुलेट कराना चाहूँगी कि कल मैंने तुम्हें दिखाया था ये है प्लेनेरिया। करेक्ट। प्लेनेरिया एंड दिस इज कॉन्वोल्यूटा जो कि फ्री लिविंग है, राइट? दे आर नॉट पैरासिटिक। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, दिस इज लिवर फ्लूक, दिस इज टेप वर्म विच आर पैरासिटिक। जो फ्री लिविंग है दे कैन बी एक्वेटिक, जैसे प्लेनेरिया जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म है, कॉन्वोल्यूटा जो है वो मरीन फॉर्म है, राइट? दे कैन बी टेरिस्ट्रियल, जैसे ये बाइपेलियम है, टेरिस्ट्रियल है। दिस इज जियोप्लाना विच इज अ टेरिस्ट्रियल वर्म. Correct. Then see, apart from this, there were other worms also, like liver fluke, which are parasitic, tapeworm, highly parasitic. Then we have, a worm Gyrodactylus, which is ectoparasitic. This is Diplozoan, which is ectoparasitic. Then there, yesterday we saw, I showed you Schistosoma. Then this was Diphyllobothrium. Correct. So here, based on these pictures, you can see that some of the worms are, free living. Some are terrestrial. Of those which are free living, some are aquatic. Correct. And some are ectoparasitic and some are endoparasitic. Correct. Now, mainly based on the habitat, if you see, we would classify the protozoan into three classes. First, here we'll write down the characters. Correct. Now, here if you see, correct. Now, based on the characters, different characters, we have divided the phylum Platyhelminthes into three classes. First is class Turbularia. Right? If we see the first characteristic, that is habitat, habitat is the place where they live. Class Turbularia include all the free living worms, or you can say all the non-parasitic worms are included in class Turbularia. अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना, Convolvulata दिखाया था, Planaria दिखाया था. They all are classified in class Turbularia. दूसरी क्लास है Trematoda. ट्रीमेटोडा में वो वर्म्स आते हैं जो कि पैरासिटिक हैं, विच कैन बी एक्टोपैरासिटिक एज वेल एज एंडोपैरासिटिक. Then there is third class, that is class Cestoda. Class Cestoda में exclusively एंडोपैरासाइट्स ही आते हैं. Correct. Now, if you see, this was the based on the habitat. Second character for used for classification over here is body form. राइट. अब आप देखो कि जैसे मैं ये दिखाया मैंने तुम्हें, प्लेनेरिया देखो या फिर कॉन्वोल्यूटा देखो. यहाँ पर बॉडी फॉर्म कैसा है? बॉडी फॉर्म जो है वो अनसेगमेंटेड है, फ्लैट है, लीफ लाइक है. राइट. ट्रीमेटोडा में भी इफ यू सी, ट्रीमेटोडा में अगर आप देखोगे जैसे लिवर फ्लूक है, ये देखो, देखो ये देखो लिवर फ्लूक है. और इफ यू सी, दिस इज शिस्टोसोमा,
कैन यू सी शिस्टोसोमा. इनमें भी अगर if you see, body form is unsegmented, फ्लैट है एंड लीफ लाइक है. करेक्ट. वेयर एज अगर आप देखोगे टीनिया सोलियम को देखिए, जैसे ये देखिए टेप वर्म है, बॉडी कैसी है, रिबन लाइक है और अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. सो हेयर क्लास सेस्टोडा इफ यू सी, बॉडी इज segmented, flat, and it is ribbon like, it is not leaf like. Correct. Next characteristic if you see, which we use for classification, here is body wall. ठीक है. जो फ्री लिविंग है, जो टर्बुलेरियंस है, वहाँ पर एपिडर्मिस क्या है, इफ़ यू सी एपिडर्मिस इज सिंशियल. सिंशियल एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट. कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हैज़ अकर्ड but no cell division has not occurred, cytoplasmic division has not occurred completely, and such type of epidermis is known as syncytial epidermis. तो उनकी body if you see body wall is covered by syncytial epidermis, and in between if you see there are certain granular structures. इस तरह की granular structures जिनको कहते हैं rhabdites, वो भी प्रेजेंट है. rhabdites क्या करती हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स एक स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं बॉडी वॉल के ऊपर. करेक्ट. नाउ समटाइम्स एपिडर्मिस इज पार्शियली ciliated, not fully, partially ciliated also. Whereas in case of class Trematoda, if you see body wall, if you there is no epidermis, it is covered by a cuticular thickening which we call as tegument. So if you see, body is covered by a cuticular thickening known as tegument. Here also the body wall consists of tegument with microvilli, because exclusively वो है ना एंडोपैरासिटिक है, तो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू माइक्रोविलाई. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी, पोजीशन ऑफ माउथ. अगर आपको याद होगा प्लेनेरिया में या कॉन्वोल्यूटा में माउथ दिख ही नहीं रहा था, राइट. तो इनमें क्या होता है, टर्बुलेरिया में या तो माउथ एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट भी होता है तो वेंट्रल इन पोजीशन होता है. करेक्ट. वेयर इज क्लास ट्रीमेटोडा में देखो, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से. इफ़ यू सी लिवर फ्लूक देखो आप, राइट, या फिर शिस्टोसोमा देखो आप. करेक्ट. इनमें क्या है, इफ यू सी द पोजिशन ऑफ माउथ इज एंटीरियर, एंटीरियर एंड पर ओपनिंग होती है. इट इज एट द एंटीरियर टिप द माउथ इज प्रेजेंट. वेयर इज इन केस ऑफ सेस्टोडा, माउथ एंड गट they are totally absent, they are not present. Now the next characteristic over here for classification is sense organs. Trematoda में टर्बुलेरिया में if you see सेंस ऑर्गन्स, बेसिक सेंस ऑर्गन दैट इज स्टैटोसिस्ट जिसका काम इक्विलिब्रियम है, या फिर आइज प्रेजेंट होती है. इन केस ऑफ ट्रीमेटोडा इफ़ यू सी, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, जो फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, दैट ट्रू इन द फॉर्म ऑफ आई और ऑसिलाई. सेस्टोडा में सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट. करेक्ट. नाउ इफ यू सी डेवलपमेंट, देर इज, कल बताया था ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट है टर्बुलेरिया में. यंग वन जो है डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, देर इज़ नो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वल स्टेज. जबकि ट्रीमेटोडा में मल्टीपल लार्वल स्टेजेस आर देयर, मैनी लार्वल स्टेजेस आर देयर, whereas in case of cestoda 1 or 2 larval stages are there. Correct. Now if you see example, जैसे मैं बार बार तुम्हें
बताते भी पिक्चर्स भी आ रही हूँ कि इसमें क्या आएंगे, टर्बल एरिया में जितने भी प्लेनेरियंस हैं ये, राइट, कॉन्वोल्यूटा दिखाया था मैंने, करेक्ट। माइक्रोस्टोमियम में ये पिक्चर मैंने दिखाई नहीं, तुम्हें देख लेना, या बाइपेलियम है, बाइपेलियम मैंने दिखाया था। जबकि ट्रीमैटोडा में बार बार मैं तुम्हें दिखाई रही हूँ फ्लूक्स हैं, जैसे लिवर फ्लूक मैंने दिखाया था, शिस्टोसोमा मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। डिप्लोजोवन ये भी पिक्चर मैंने तुम्हें दिखाई है, राइट। दे ऑल आर इंक्लूडेड इन ट्रीमैटोडा। सेस्टोडा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेप वर्म, टीनिया सोलियम, करेक्ट। अकाइनोकोकस मैंने दिखाया, कोकस। डाइफाइलोबॉथ्रियम ये मैंने कल भी तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाया था, इसके अडेसिव स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, राइट। सो these are the different examples of these different classes. So if you see, phylum Platyhelminthes is divided into class Turbularia, Trematoda and Cestoda. I hope आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा।